हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू योर चैनल एजुकेशनल प्लाजा। एजुकेशनल प्लाजा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर चिल्ड्रेन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ज्योग्राफी क्लास 10 चैप्टर 7 लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी। In this chapter we will discuss role of means of transport and communication in the development of national economy. So dear children, if you are new and you have not subscribed the channel, please subscribe it, press the bell icon, and if you find channel useful, please press the like button and share it among your friends and give your suggestion and comment in comment box. टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मस्ट वॉच वीडियो अप टू एन एंड। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोड्स। यू माइट हैव हर्ड अबाउट नेशनल हाईवे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इस तरह के नाम आप सुने होंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क, उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर, हाईवेज, नेशनल हाईवेज, पीडब्ल्यूडी सड़क। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। इन दिस मैप यू कैन सी इन द गोल्डन कलर देयर इज 4 sides of this. One is from here Delhi to Kolkata, another side, eastern side you can see it is up to Chennai, Kolkata to Chennai, and then from Chennai through Bangalore it is coming to Mumbai, and from Mumbai via Surat, Barodara, Ahmedabad, Udaipur it is reaching to again Delhi. So here are 4 sides. For this reason it is known as Golden Quadrilateral, which are connecting the 4 metropolitan cities. Then you can see here from here Uri or Srinagar to Kanyakumari in Jammu Kashmir, Srinagar to Kanyakumari. In the north it is Srinagar and in the south it is Kanyakumari. North South Corridor. Northernmost terminal Srinagar, southernmost terminal Kanyakumari, southernmost terminal, northernmost terminal is Srinagar. Then here Silchar, easternmost terminal Silchar, Silchar in Assam, यहाँ से शुरू हो करके और this area bypassing northern Bengal, Bihar, UP, then MP, it is reaching to Gujarat, Rajasthan होते हुए Gujarat, Porbandar. So it is westernmost terminal of east-west corridor. After that, so many NH, national highway name you have heard in your areas maybe. तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस आधार पर इसको क्लासिफाई करते हैं और कौन सी संस्था इसकी मेंटेनेंस करती है, कौन सी सड़कें, which type of roads connecting national capital to other cities or other states, state capital to district headquarters, etc. So that I will discuss today in this video. Now you can see the next slide. Classification of roads are classified according to their capacity. Look at the map of the national highways and find out about the significant role played by these roads that I have shown you. Now first kind of road is Golden Quadrilateral, which I have shown you here in my last map, or it is also known as Golden Quadrilateral super highways, and the whole country will remain grateful to Honorable
डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के दूर दराज के क्षेत्रों को, एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय दिस टाइप ऑफ नेशनल हाईवेज आर मेंटेन्ड बाय, उसकी देखभाल की जाती है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD। स्टेट हाईवेज लिंक स्टेट कैपिटल विथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स and are constructed and maintained by State Public Works Department, Central Public Works Department for National Highway NH जिसको हम कहते हैं, और State Public Works Department SPWD State Government के लिए they are looking after they are maintaining and constructing the roads for them। कुछ और लाइन देखिए नेशनल हाईवेज का। A number of major national highways run in north, south and east-west direction। कई बार आपने सुना होगा NH1, NH2, NH28, NH36 नाम से भी जाने जाते हैं। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी, शेरशाह जो बहुत बड़े रूलर हुए थे, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी रोड इज ऑल्सो नोन एज NH। It is connecting major cities of the country. State highways, it is maintained by State Public Works Department PWD. It connects state capital with the district headquarters. District roads, it is maintained by Jila Parishad, district headquarters. Connect district headquarters with the other places in the district. Rural roads maintained by Gram Panchayat. It connects rural areas, village areas with towns. Border roads, very important. The roads which are being constructed on the border of the country, maintained by Border Road Organization, BRO, it is separate organization. आपने चाइना के बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे देखा होगा टीवी के माध्यम से रोड कंस्ट्रक्शन। दे कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन बॉर्डर एरियाज फॉर डिफेंस। देश की सुरक्षा के लिए, सैनिक साजो सामान की इजी मूवमेंट के लिए बॉर्डर के किनारे भी सड़कें बनाई जा रही है बड़ी तेज़ी से। आज चाइना जो
हमारे ऊपर हावी नहीं हो पा रहा है, उसका रीज़न क्या है कि नाउ वी आर हैविंग हाईली एंड फास्ट अप्रोच टू आवर बॉर्डर एरियाज। देख सकते हैं माउंटेन एरियाज में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से सड़कें बनाई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, a government of India undertaking constructs and maintains roads in the bordering areas of the country. This organization was established in 1960. Border Road Organization was established in 1960 for the development of the roads of strategic importance. क्या महत्व है इसका? बॉर्डर रोड्स हैव इम्प्रूव्ड accessibility in areas of difficult terrain. They have helped in the economic development of border areas. आपके मन में होता होगा सड़कें बन जाएगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे नहीं होता? आप अपने एरिया से एग्जांपल लीजिए। टेक एग्जांपल फ्रॉम योर ओन रीजन। आपके गांव में पहले कितने ऑटो थे, कितने 4 व्हीलर थे, आज देखो कितने हैं। जैसे सड़क बन गई, सड़क किनारे दुकानें लोगों ने लगानी शुरू कर दी। दे स्टार्टेड देयर बिजनेस, दे स्टार्टेड जनरेटिंग देयर इनकम। जो लोग जयपुर में, दिल्ली में ऑटो चलाते थे, मुंबई में ऑटो चलाते थे, गाड़ियाँ चलाते थे, वे अपनी गाड़ी बैंक से निकाल कर या अपना खरीद कर या भाड़े पर आपके अपने गांव के पास सड़क पे चला रहे हैं। जहाँ का सामान देश के दूसरे हिस्से में नहीं जा पाता था, with the help of these roads, now they are able to send their products to different parts of the country and earning a lot. They supply military equipment. बॉर्डर रोड सबसे इम्पोर्टेंट इस पॉइंट के लिए है कि रोड बन जाने से मिलिट्री इक्विपमेंट को पहुंचाना, बॉर्डर एरियाज में सेना को पहुंचाना, सेना के साजो सामान को पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। इट हैज़ बिकम वेरी इजी टू सेंड। Dear students, roads can also be classified on the basis of the type of materials used for their construction. कभी कभी ये भी क्वेश्चन आते हैं कि on the basis of materials used in the construction of roads, classify the roads. So then there are 2 types of roads. One is metalled roads, another is unmetalled roads. पक्की सड़क, कच्ची सड़क। Metal roads may be made of cement, concrete or even bitumen coal. Therefore, they are called metal road. Unmetal road may be of earthen. कच्ची मिट्टी, मिट्टी की सड़क, कच्ची सड़क जिसको हम कहते हैं, वो होता है। So here you have seen classification of roads. Now very important topic in this connection is your road density. क्या हमारे देश में जितनी पॉपुलेशन है, क्या उस मात्रा में सड़कें हैं?
उसको हम कहते हैं रोड डेंसिटी, दैट इज नोन एज रोड डेंसिटी। द लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड्स। 100 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी लंबी सड़कें हैं उसको कहा जाता है डेंसिटी ऑफ रोड पर 100। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड इज नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री। यस, पूरे देश में रोड वेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सड़कें जो पाई जाती है, जो बनाई गई है, वो एक समान नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन में ज़्यादा सड़कें मिलती है, ज़्यादा रेलवे लाइंस मिलते हैं, बट प्लेट्यू एरियाज़ में, माउंटेन एरियाज़ में कम मिलते हैं। उसका अपना कारण है। आई विल डिस्कस दिस इन लेटर पार्ट। डेंसिटी ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू कश्मीर। ये ओल्ड डेटा है, उसके अनुसार सबसे कम 12.14 किलोमीटर सड़क पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मीन्स रोड डेंसिटी ऑफ जम्मू कश्मीर इज द लोएस्ट। 517.77 kilometer in Kerala, it is highest as per 31st March 2011 data, with the national average is 142.68 kilometer। यानी नेशनल डेटा है कि 100 स्क्वायर किलोमीटर में कितने किलोमीटर लंबी सड़क होगी, 142.68। केरला में तो उससे कई गुना ज़्यादा है, बट जम्मू कश्मीर में देखिए 12.14। रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। हम कई पिछले अपने वीडियोज़ में मैं चर्चा कर चुका हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम रोडवेज को फॉलो करना पड़ता है, व्हाट प्रॉब्लम्स दे यूज टू फेस। रोडवेज हैव टू फेस मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको हम पिछले वीडियोज़ में। अब इसको पॉइंट में देखिए, हियर यू कैन सी इन पॉइंट the length of road per 100 square kilometer of area is known as density of roads। यानी 10 किलोमीटर लेंथ, 10 किलोमीटर ब्रेथ, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा 100 स्क्वायर किलोमीटर। उस 100 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी लंबाई सड़क पाई जाती है उसको मान लिया जाता है रोड डेंसिटी। सबसे हाईएस्ट रोड डेंसिटी कहाँ की है? केरला की, हमारे देश में। सबसे लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड कहाँ की है? सबसे कम सड़कें कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। लीस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स इन जम्मू कश्मीर। सो दिस वे स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड in this video about different types of roads, means classification of roads, in which we have discussed golden quadrilateral, east west north south corridor, national highways, state highways, district roads, rural roads, border roads and their importance, and in the last I have discussed about road density. I hope this video will help you a lot. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहे, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इफ़ यू थिंक द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू आर न्यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू मस्ट गिव योर सजेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर लिखें, उससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है, हमें लगता है कि हमें और आपके लिए काम करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks a lot. Love you all. Bye bye.